Yeah, good morning, everyone. So we already were discussing about linear programming problems. So, but before I begin, you had your UT just now. So, anyone having any doubt in any question, please do let me know. And I'm sure you all have uploaded your test paper as well. Any doubt to anyone in any of the question? So I believe there is no doubt to anyone. No one is answering. So you can quickly check out the first six questions and their solutions just for a quick reference. So I hope the idea is clear. यहाँ पर अगर कोई डाउट है किसी को, so do let me know. This is obviously the marking scheme which I have prepared. तो इसमें हो सकता है कोई जल्दबाजी में कैलकुलेशन मिस्टेक हो, तो अगर ऐसा भी फील होता है, डू इन्फॉर्म मी. Then the next three questions and their solution for your reference. Check them out. So I've solved the questions completely प्रॉपर वे में लिख कर दिखाया है. चाहे ये वन मार्कर है, डायरेक्ट आंसर इज परफेक्टली फाइन. सो जो भी आपका रफ वर्क हो सकता था या कुछ कैलकुलेशंस, सो दे मस्ट बी मिनिमम, और आप कह सकते हैं इतना तो होना ही था. Then question number 10th, 11th, 12th on your screen. Check this out. So if any step is not clear, do let me know. Question number 13th, 3 marker.
And this is question number 14, another 3 marker. So you need to show the table. As already discussed earlier in the classroom while I was teaching this particular subtopic, I used a simple shortcut approach. Probably बोर्ड में एग्जामिनर में डिडक्ट हाफ मार्क फॉर द सेम अगर ये सब्जेक्टिव की बात होती है, तो प्लीज चेक इट आउट. और 11th का बेसिक फंडामेंटल आइडिया कि ये 3 पाई बाय 4 एंड 7 पाई बाय 4 है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, तो क्लियर होना चाहिए कैसे इसे यूज किया है. Followed by or part for this question जो रहा था, in case if you attempted that. So here on your screen, so I'm sure most of you, in fact everyone, has attempted the complete paper and solved it correctly. Okay, so let's now begin with the LPP. We were already discussing what exactly is LPP, certain terms like objective functions, constraints, then feasible solution, then the corner point method. I already have discussed about that. So check out this one question. I'll show you the solution directly, but one very important concept, and you will be expecting the same 100% in your examination. Check this out. Solve the following problem graphically, minimize and maximize, and subject to following constraints. कंस्ट्रेंट्स में सबसे इंपॉर्टेंट जो कंस्ट्रेंट है ये तो आप डायरेक्टली कर लेते हैं, ये इजीली हो जाएगा, और आई बिलीव आप शेडिंग भी ध्यान से कर लेंगे. दिस इज रेफरिंग टू द फर्स्ट क्वाड्रेंट. मैनी अ टाइम्स प्रॉब्लम आती है इस तरह के कंस्ट्रेंट्स को प्लॉट करने में. रिमेंबर, दिस इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग द कर्व x इक्वल टू y ओनली, और x इक्वल टू y का मतलब क्या हो गया? इट इज ई स्ट्रेट लाइन जो 45 डिग्री पे इंक्लाइंड होती है विद एक्स एक्सिस. बट नाउ द पॉइंट इज 0,0 ऑलरेडी लाई ऑन दिस, तो आई कैन नॉट यूज दैट टू चेक कि शेडिंग कहाँ जाएगा. इसीलिए चॉइस इज यूअर्स. आप कोई भी पॉइंट ले लो, मान लो ये है 2,0, एनीवेयर अदर देन 0,0, और आप वो पॉइंट पुट करके देखिए. 2,0 पुट करा, 2 x की जगह 2 लेस देन और इक्वल टू 0. तो चेक दिस आउट, दिस इज फॉल्स. दिस इज फॉल्स होने का मतलब क्या हो गया कि मेरा शेडिंग इसकी डायरेक्शन में नहीं आना है, तो शेडिंग इस लाइन से ऊपर की तरफ जाएगा. सो दैट अंडरस्टैंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो लेट्स बिलीव ये अब आपने कर लिया है, शेडिंग ऊपर की तरफ, remaining 2 and in the first quadrant. So here is the graph for your reference. You can easily verify this. And at the same time, the corner points maybe on the graph you can easily read them out. But if it is not feasible and not appropriate, in that case, solve the given equations simultaneously. Equality में consider कर लो और आप फर्स्ट एंड सेकंड को सॉल्व करो. जैसे ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन रही थी, यहाँ पर कोई भी एक, ये मैंने कह दिया फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड, ये थर्ड, विद इक्वालिटी.
तो फर्स्ट सेकंड को सॉल्व कर दो, सेकंड थर्ड को कर दो, फर्स्ट एंड थर्ड को कर दो. I will get their points of intersections and they will probably give me then the corner points जो यहाँ डायग्राम में डायरेक्ट दिख रहे हैं. Once corner points are labeled, अब इसके बाद देखिए आपको क्या सोचना था. कॉर्नर पॉइंट आ गए और अब इनके ऊपर आपको z की वैल्यू निकालनी है. z is minimize and maximize this 3x plus 9y. ये रहा. Get the value at the corner point. x को 0, y को 10 रखो. In the objective function 90 आ गया. Please check this out. At the same time, अब इन वैल्यूज में से मैंने रीड आउट करा 5,5 पे तो मिनिमम वैल्यू क्लियरली आ गई, माय आंसर. बट मैक्सिमम के लिए मैंने देखा कि 180 180 बोथ आर सेम, तो दोनों मेरी मैक्सिमम वैल्यूज हैं एट द पॉइंट C as well as D. And along with that there is very important result. A theorem is there without proof. बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा. ये मेरा फिजिबल रीजन था. मैंने क्या नोटिस करा कि मैक्सिमम वैल्यू 2 पॉइंट्स पर आ रही है, C एंड D. तो देयर इज अ रिजल्ट विच सेज कि अगर आपका मैक्सिमाइजेशन और इवन मिनिमाइजेशन, अगर मैक्सिमाइजेशन हो गया एक लाइन सेगमेंट के ऊपर C एंड D के ऊपर, तो उसके लाइन सेगमेंट में जितने भी इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स होंगे उनके ऊपर भी ये फंक्शन सेम यही मैक्सिमा एंड मिनिमा मैक्सिमा अटेन कर रहा है. तो मैक्सिमा विल बी अटेन्ड ऑल्सो एट all the infinitely many points which lie on the join C to D. तो CD पे तो क्लियर था जो दिख रहा है, बाकी इस लाइन सेगमेंट के ऊपर इनफिनिटली मैनी पॉइंट्स के ऊपर भी मैक्सिमा विल टेक प्लेस. So understand this as a standard result. And before we move on, everyone please mark your attendance. Check out this question, 12.1 exercise से. Solve the following LPP graphically. Maximize and subject to following constraints. तो begin with, ये तो बहुत easy question दिया है. Only one constraint is there. और first quadrant की बात हुई है. तो this is your graph. मैक्सिमम मैंने स्पेस दे दिया फर्स्ट क्वाड्रेंट को एंड विद इक्वालिटी जब आप इसकी टेबल बनाएंगे तो अब तो ये ऑब्वियस चीजें हो जाती हैं. व्हेन x is 0 y is 4, व्हेन y is 0 x is 4. तो ये और ये पॉइंट्स आ गए. आप इन्हें स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देंगे यूजिंग योर स्केल. डू नॉट फॉरगेट टू राइट द इक्वेशन और यहां इक्वालिटी लगाना है, ये याद रखिए. ये हम देख ही चुके हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में. और शेडिंग को अगर मैं बात करूं 0,0 पुट करा विच इज ट्रू. ट्रू का मतलब हमारा शेडिंग आ गया है नीचे की तरफ. बट अगेन रिमेंबर, साथ में एक और कंडीशन थी, एक्स एंड वाई पॉजिटिव. तो पॉजिटिव होने का मतलब एक्चुअल में मुझे शेडिंग ये नहीं दिखाना. आई नीड ओनली इन दी फर्स्ट क्वाड्रेंट.
तो ये मेरा पोर्शन आ जाएगा इन दी फर्स्ट क्वाड्रेंट, जो आपको शेड करके दिखा देना है। और अब अगर आप चेक करें, आपको क्वेश्चन तो अभी मैक्सिमाइज करना था, तो आपके पास टेबल बना देंगे, फॉलो द यूजुअल मेथड। So only two columns are required. What were two columns? Corner point and value of the objective function 3x plus 4y. So the corner points are 0 0, ये रहा, then 4 0 and 0 4. For a sake of simplicity आप इसे a और इसे यहाँ b लिख दीजिए, so that I can always label these points as origin, then A and then B. Get the values. This is 12 and this is 16. हमें करना था maxima. So which is your required answer? So maximum value of Z is 16. That is, this is the perfect notation. Z maximum is 16. और कहाँ हुआ है, कब हुआ है? When x is 0 and y is 4. So this theoretical statement is again important कि आप अपने आंसर में लास्ट लाइन ये लिखकर बताएं कि यहाँ मैक्सिमा हो गया है। Everyone please do this question. मैं अभी इसका ग्राफ नहीं बना रहा हूं। Everyone please do it. And you can send me your solution graph अपना बना के on the WhatsApp to me. It is highly recommended that you even practice on the graph paper. बाकी ठीक है, अभी कैसे भी कर लीजिए, no issues. But when you are practicing and doing your proper work, so it should be done on the graph paper.
आई होप फर्स्ट लाइन तो ग्राफ हो ही गया होगा, वेरी बेसिक एंड सिंपल. एंड इवन बिफोर आई ग्राफ इट, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस भी हम चेक कर लेते हैं. सो 2x इज इक्वल टू 4x आ गया 2 when x is 2 6 3. सो 2,3 एक्चुअल में इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है. मैंने इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लिया है यूजिंग एल्जेब्राइक मेथड, सो दैट मुझे एक आइडिया भी लग चुका है कि ग्राफ मेरा अप्रोप्रिएट कुछ ऐसा जाने वाला था कि इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से ये ऐसे और फिर कुछ ऐसे ये यहीं से निकलेगा. बिल्कुल आप स्केल से करेंगे तो बहुत नीटनेस आएगी, लाइक दिस. सो एक स्ट्रेट लाइन आने वाली है. Write down the equation of the line, do not forget that. और अब हम इनका शेडिंग सोचते हैं. फर्स्ट वाली लाइन की अगर मैं बात करूं तो when I put 0 0 ट्रू है. फर्स्ट वाले एक लाइन का शेडिंग नीचे की तरफ है, राइट तो इससे नीचे आ रहा है. बट इट इज़ नॉट रिकमेंडेड कि आप एग्जाम में ये पूरा इस तरह से दिखा रहे हैं. बस माइंड में सोच लिया कि शेडिंग नीचे की तरफ है एंड लेट मी डू नॉट यूज दिस, राइट. सिर्फ एक हाईलाइट कर लिया. नेक्स्ट शेडिंग के लिए मैंने देखा तो वो कहाँ जा रहा है, अगेन टुवर्ड्स द ओरिजिन. 0 0 सेटिस्फाई कर रहा है. तो दोनों से कॉमन रीजन इजी आइडेंटिफिकेशन हो चुका है क्योंकि हमें रहना था फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल्सो. तो ये ध्यान से रखिए, नोटिस करिए, सॉल्यूशन मस्ट बी लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट. तो प्रॉपर बस इसको थोड़ा शेड कर दिया एंड हाईलाइट दी कॉर्नर पॉइंट्स नाउ. सो कॉर्नर पॉइंट्स में मेरे पास मैंने ये ओरिजिन तो चलो आ ही गया. ए ले लिया 4 0, बी हो गया 2,3 एंड सी हो गया 0,4. Get the corner point and table. So Mithali is saying its minima at 4,0. So minima is at 4,0. So everyone, please quickly check this out. So corner point and objective function minus 3x plus 4y 0 0 and then 4 0 2 3 and 0 4. Get the values. minus 12 ये आ गया minus 6 and then plus 6 आ गया और इसके ऊपर 16. तो मिनिमा पूछा था, सो मिनिमा एट 4 0. परफेक्ट, ठीक है आपका आंसर मिताली. सो यहाँ मिनिमा आ गया है तो आंसर में क्या लिख देंगे, z मिनिमम इज -12. कब हुआ है, when x is 4 and y is 0. ये रिक्वायर्ड आंसर. तो इन एग्जामिनेशन यू में एक्सपेक्ट के क्या क्वेश्चन दे दिया, ग्राफ आपको ऑलरेडी दे दिया है, शेड कर कर सब चीजें दे दिया है और फिर पूछ लिया कि आप बताइए इसका मिनिमा कहाँ है. मींस दे माइट ओनली आस्क एंड रेफर टू द टेबल पार्ट. तो 90% ऑफ द वर्क माइट बी गिवन टू यू, क्योंकि ऐसा हो सकता है ना एमसीक्यू आए, 1 मार्कर क्वेश्चन आए, तो 1 मार्कर में आपसे ऑफकोर्स इतना कुछ तो डेफिनेटली एक्सपेक्टेड नहीं है कि आप ये सब कुछ सॉल्व कर रहे हैं. तो कोई दिक्कत नहीं है, मैक्सिमम चीजें आपको कर दे दिया और फिर आपसे ये पूछ लिया कि चलिए अब बताइए क्या होगा आंसर. तो आपको -12 सिर्फ आंसर बताना होगा. सो दैट में ऑल्सो यू कैन एक्सपेक्ट द क्वेश्चंस. So that when I come to now exercise 12.1, hardly matter. You look at the question and one can easily graph it.
This is in your homework now. इट इज पॉसिबल, आई नीड टू चेक, क्योंकि ये दोनों आपके ओपन दिए हुए हैं ना, तो ये अनबाउंडेड रीजन आ सकता है. लेट मी क्विकली ग्राफ इट. फर्स्ट वाला, when x is 0 y is 1, when y is 0 x is 3. तो 0, 1 and 3, 0 ये ज्वाइन कर दिया. एंड सिंस 0 0 डू नॉट सेटिस्फाई दिस, ये ध्यान से नोटिस करिए, तो शेडिंग ऊपर की तरफ एक्चुअल में ये जा रहा है. बस कीप दिस इन योर माइंड, इन योर माइंड, ये ऊपर की तरफ शेडिंग रहेगा. नेक्स्ट सेकंड वाले को जब मैं करूंगा ये, तो ये तो ऑब्वियस टेबल है वैसे इसकी. 0 when x is 0 y is 2 and 0 के ऊपर 2 आ गया, तो ये एंड ये आ गया. when I join these 2 points, और इसमें भी ओरिजिन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, शेडिंग ऊपर की तरफ जाएगा. तो अब अगर अब आप ध्यान से नोटिस करें तो शेडिंग एक्चुअल में, क्योंकि मुझे फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना है, तो कुछ शेडिंग आपका इस तरह का मिलेगा ये, और दोनों का कॉमन देखूंगा मैं तो लाइक दिस. फिर यहां से ये इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड दिस. So this will be your actual shading, but at the same time ये आगे तक जा रहा है, ऑफ कोर्स इन्फिनिटी तक जा रहा है, ये पूरा आगे तक जा रहा है. ऑफ कोर्स आई कैन नॉट शो द कंप्लीट पार्ट. तो ये अब आप समझ लीजिए, अगर सिचुएशन ऐसी आ जाती है, दिस इज नॉट इन आवर सिलेबस, तो यू कैन सिंपली अवॉइड दिस एटलीस्ट फॉर दिस सेशन. आपके बोर्ड के एग्जाम में ये क्वेश्चंस नहीं लिया गया है when it is a case of unbounded region. In case of unbounded region, we have some different methods, some different approaches to follow. So I am not talking about that. इस केस में ये फिजिबल रीजन तो आ गया. अब सॉल्यूशन जो है मिनिमा या मैक्सिमा may or even may not exist at the corner point as well. हो सकता है इस क्वेश्चन का मैक्सिमा या मिनिमा हो ही ना, या इट इज पॉसिबल. तो वो है या नहीं है, वो चेक करने के मेथड्स हैं. देयर आर अगेन सम थ्योरम्स, प्रूफ्स यूनिवर्सिटी लेवल पर है. वी आर नॉट टेकिंग दैट, राइट. तो दिस क्वेश्चन एक्चुअली इज इन डिलीटेड पार्ट. सो अगर आपके किसी भी क्वेश्चन में अनबाउंडेड आ जाए, यू कैन ऑलवेज अवॉइड दैट, नो प्रॉब्लम. ये देखो श्योरिटी वैसे मिल जाती है विद अंडरस्टैंडिंग धीरे धीरे. अगर ये दोनों ही लेस देन और इक्वल टू हैं, ये आपका बाउंडेड आने वाला है रीजन. पिछले क्वेश्चन में अगर आपने नोटिस करा हो, ये भी ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये भी ग्रेटर देन और इक्वल टू. इसीलिए आई वाज श्योर कि भाई ये आपका शायद अनबाउंडेड आने वाला है, राइट. तो आपके पास क्वेश्चन कुछ ऐसे रहेंगे, दोनों लेस देन, और ऐसा भी हो सकता है कि एक लेस देन वाला आ जाए और एक ग्रेटर देन आ जाए, वो भी बाउंडेड रीजन बिल्कुल दे सकता है. डायरेक्ट क्वेश्चन फॉर योर होमवर्क. Will it be bounded or unbounded? Anyone? Just by looking at the question. Yes, it is unbounded. अभी एक्सप्लेन करा है. अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन दिख जाए तो आप अपने आप इंश्योर कर सकते हैं ये केस
अल्टीमेटली अनबाउंडेड में आएगा. सो यू कैन अवॉइड दिस क्वेश्चन, नो प्रॉब्लम. अब यहां लेस देन और इक्वल टू है और ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो अगर एक भी लेस देन और इक्वल टू आ जाए तो प्रोबेबली वो बाउंडेड में लेकर जाएगा. पर याद रखिए अब यहाँ 3 लाइंस हैं जो आपको ड्रॉ करनी है, एंड एट द सेम टाइम अब आपके पॉइंट्स सिंपल, अगर मैं वो टेबल की बात करूं, फॉर से फर्स्ट दिस यूजुअल बनाऊंगा. when x is 0, y is 60, and when y is 0, x is 120. ऐसे ही सेकंड की टेबल एंड थर्ड का हो जाएगा आइडिया. 0, 60, एंड थर्ड के लिए अगर हम बात करेंगे, सो दैट इज अगेन व्हेन x इज 0, व्हेन x इज 0, y इज 0, व्हेन x इज, अब मैं यहां 1 2 3 नहीं लेता, लेट मी चूज से व्हेन x इज 20, तो 20 इज इक्वल टू 2y एंड y विल बी 10. आई एम श्योर द आइडिया इज क्लियर, और मैंने जानबूझ कर थोड़ा सा डिफरेंट ग्राफ लिया है. वाई, कैन एनीवन टेल मी किस तरह का गैप अब हमें लेना चाहिए ऑन एक्स एंड वाई एक्सिस? फर्स्ट क्वाड्रेंट तो ले ही लिया, और नाउ आई इंस्टेड ऑफ 1 2 3 4 लेट मी टेक 10 20 30 40 50 एंड सो ऑन, बिकॉज जो आपकी टेबल बनी है उनकी वैल्यूज को देखकर ही आपको ये डिसाइड करना है. तो हर बार 1 2 3 4 वर्क नहीं करेगा. राइट. सो अब अगर मैं फर्स्ट वन ग्राफ करता हूं, 0 60 एंड 120, ये रहा. वही है, अभी यहां तो प्रॉपर मैं बना नहीं पाऊंगा, आप प्रॉपर कर लेना अपने आप. ये फर्स्ट लाइन है और शेडिंग इसका नीचे की तरफ है. ये लेस देन था ना, ये एक ऑब्जर्वेशन से आप कर सकते हैं. नेक्स्ट लाइन ये रहा, 0 60 सेम पॉइंट एंड 60 0. Join them together, extend this जितना भी पॉसिबल हो, एंड इसका शेडिंग अगर आप ध्यान से देखें ऊपर की तरफ आ रहा है. ओरिजिन इज नॉट बीइंग सेटिस्फाइड हेयर. तो ये थोड़ा सा माइंड में रख के चलिए कि इसका रेड वाली लाइन का नीचे था और ग्रीन वाले से सेकेंड लाइन का ऊपर आ गया है. थर्ड लाइन को जब हम ड्रॉ करेंगे, सो 0 0 एंड 20, 10 कुछ ये आ गया, एंड ये कुछ इस तरह से लाइन निकल जाएगी लाइक दिस. तो दिस इज माय थर्ड लाइन. शेडिंग चेक कर लीजिए. आई कैन नॉट पुट 0 0 इस वाले में. x माइनस 2y इक्वल टू 0 है. इक्वालिटी अब तो ये ले लेता ना, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. सो लेट मी थिंक ऑफ अ पॉइंट 10 0. पुट करो जरा इसमें 10 0. 10 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 विच इज फॉल्स. तो ये वाला पॉइंट सॉल्यूशन में नहीं आएगा, मींस शेडिंग ऊपर की तरफ हो गया. सो कैन एनीवन टेल मी, अगर ये A मान लिया, ये B मान लिया, ये C है, ये D है और ये E है, तो विच रीजन फाइनली आपका विजिबल हो रहा है इसका सॉल्यूशन? विल दैट बी अ ट्राइंगल और अ क्वाड्रिलेटरल? फर्स्ट थिंग, कौन सा रीजन दिख रहा
I was on mute. If for the past few minutes I was on mute, seriously I feel कि मैं अपने आप को ही पढ़ा रहा हूँ. No one even mentioned that in the chat box. Strange. एक मिनट. Oh sorry. 10 greater than or equal to 0. ये आ गया ट्रू. तो ट्रू का मतलब शेडिंग नीचे की तरफ आ गया. तो एक ये मैंने गलत सोच लिया, तो उससे सारा बदल जाता. शेडिंग फाइनली अब अगर आप इन सब से चेक करेंगे तो यू विल बी गेटिंग दिस एज योर फाइनल रीजन. फिजिबल रीजन ये आ जाएगा. कॉर्नर पॉइंट के ऊपर गेट द वैल्यू. यू विल हैव योर रिक्वायर्ड आंसर. ओके. अच्छा चलो, पता नहीं, अभी मुझे लगा कि ऑडियो ऑफ हो गया या जो भी. एनीवे, सो थैंक यू फॉर दिस करेक्शन समृद्धि. सो प्लीज कंप्लीट. इसकी तो टेबल अब आप बना ही लेंगे, कॉर्नर पॉइंट और वो सब वैल्यूज का. एंड एट द सेम टाइम प्लीज कंप्लीट द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन योर होमवर्क. 8th क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन सीम्स टू बी अनबाउंडेड. आप चेक कर लेना, तो दैट कैन बी सिंपली अवॉइडेड. And then do this question in your homework, so that exercise 8.1 हमारा complete हो गया है. In the next class I will be talking about particularly the applications of LPP. रियल लाइफ में कहाँ बात होती है, तो ये कुछ एग्जांपल्स के बारे में हम बात करेंगे. And then I am going to discuss the latest CBSE sample paper. उसमें किस तरह के क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो ये हमारी नेक्स्ट क्लास की मैं पहले दिखा रहा हूं. और ये जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, 99% वर्ड प्रॉब्लम्स बिल्कुल अवॉइड हो रही हैं, वो नहीं आने वाली हैं. बट स्टिल आई वांट टू डिस्कस द बेसिक आइडिया ओनली अबाउट दीज क्वेश्चंस. So we'll complete that chapter in our next class. Until then, goodbye. Take care. Please mark your attendance before you leave the class. Everyone, mark your attendance. Thank you, sir. Yeah, okay, welcome. Thank you. Yes, please leave the class, everyone.